Hello friends, welcome all of you to the Fundamental Pharmacy. Again, I have come up with a new video for you that is drug of choice for different infectious diseases. Okay, so it is very important video as far as your pharmacocompetitive exams are concerned. Exams like GPAT, Niper, Drug Inspector, Government Pharmacist or Government Lectureship or any other pharmacocompetitive exams. If you are interested in any one of these exams, you must watch this video. Okay, so friends, this video is going to be very important, useful and knowledge oriented. So it's my request, please watch the complete video. Friends, in this session, we will try to learn different infectious diseases and their drug. I will try to cover the introductory part of disease or causative organism, symptoms, then other drugs used, etc. etc. Okay, so guys, without wasting time, I will start this session. So आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होता है और वो डिसीज के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे अपन। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेज ओरिएंटेड और आपको एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है फिक्स। ठीक है, तो आपके मार्क्स बन जाएंगे। मेरी ये दरख्वास्त है कि पूरा वीडियो देख लीजिए, आप पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो गाइज, एंड इफ यू थिंक इट्स गुड, द वीडियो इज गुड, knowledge oriented, then do not forget to hit the like, comment, share with your friends and subscribe the channel. ठीक है, कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलिए। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग एक छोटा सा डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये वीडियो, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज. ओके, सो आई एम नॉट गिविंग ए ट्रीटमेंट फॉर एनीवन, आई एम नॉट गिविंग ए ट्रीटमेंट ऑफ एनीथिंग. Okay, so if you have any symptoms of diseases which are mentioned in this video, so please consult your physician. Do not take medicine without physician's opinion. जो भी आपको मन से दवाई नहीं लेना है, आपको फिजिशियन या फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेके ही दवाई लेना है. ठीक है, बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवाई लेना नहीं है आपको. ठीक है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है. सो आई एम नॉट giving any treatment to anyone. I'm just making this video for educational purpose. ठीक है, so let's start. So welcome all GPAT Niper Drug Inspector Pharmacist aspirants. Today we are going to discuss about the important drug of choice for the infections or important drug of choice for the infectious disease. I have already made 3 videos on same topic but different diseases. Okay, so today we will discuss the drug of choice. Okay, so मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का फर्स्ट infectious disease after today's session is anthrax. So in this anthrax, drug of choice is a penicillin. anthrax में penicillin drug of choice होता है. आज हम जानने वाले हैं anthrax के बारे में. ये डिसीज होता क्या है, इन्फेक्शन होता क्या है, कैसे इन्फेक्शन होता है, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, पेनिसिलिन. अभी सिर्फ इतना याद रखो कि एंथ्रैक्स में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, पेनिसिलिन. सो पेनिसिलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन एंथ्रैक्स. सो लेट्स सी अबाउट द एंथ्रैक्स. व्हाट इज एंथ्रैक्स इटसेल्फ? सो एंथ्रैक्स इज अ जूनोटिक डिसीज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रासिस. Okay, anthrax is a zoonotic disease caused by Bacillus anthracis and this infection is transmitted through cattle. Okay, this Bacillus anthracis is a spore forming bacteria. Okay, so I will explain same in Hindi कि anthrax ये एक बीमारी है. anthrax एक ऐसा इन्फेक्शन है जो आपको पालतू जानवर से ट्रांसमिट होता है. ठीक है, पालतू जानवर से आपको ये इन्फेक्शन लग जाता है. पालतू जानवर कौन से? जैसे आपका गाय हो गया, भैंस हो गया, आपका बकरी हो गया या फिर आपका कुत्ता हो गया.
ओके। सो जो पालतू जानवर होते हैं उसमें ये वायरस पाया जाता है, ये सॉरी ये बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया उसमें उनसे ही उनके थ्रू ही आपको ट्रांसमिट होता है। ओके। सो दिस बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होता है बैसिलस एंथ्रासिस, ये एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। इट इज अ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि मान लीजिए आपको एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फिर जैसे फंगस वगैरह, सो ऑल दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे दे यूज टू डेवलप ए सिस्टम। अगर उनके कंडीशन फेवरेबल है, उनके कंडीशन फेवरेबल है फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, इफ द कंडीशन इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, they will multiply. Okay, they will multiply their colonies. But if the condition is not favorable, if condition is the extreme condition, for example अगर कोई बैक्टीरिया 38 डिग्री से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, if any bacteria is not able to live more than 38 degrees Celsius, and if the environmental temperature is 50 degrees Celsius, in that condition बाहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है तो वो बैक्टीरिया तो मर जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन बैक्टीरिया खुद को इस तरह से डेवलप करता है कि उसका जो सेल होता है बैक्टीरिया का सेल, उसके आउटर में एक कोट डेवलप करता है, एक स्पोर डेवलप करता है, जैसे प्रोटेक्शन, जैसे शील्ड होता है, एक ढाल बनाता है जैसे, ठीक है, वो दैट इज नोन एज स्पोर। वो जो स्पोर होता है वो दैट स्पोर्स helps in the microorganism, that spores helps to microorganism to live in the extreme condition, जो बहुत ही दर्दनाक वाली परिस्थिति होती है उसमें भी बैक्टीरिया जिंदा रहने के लिए ये स्पोर्स बनाता है। ठीक है, सो दैट इज अ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ओके, सो एंथ्रैक्स इज अ zoonotic disease caused by Bacillus anthracis transmitted through cattle, and the bacteria that is Bacillus anthracis is a spore forming bacteria, remember. Okay, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं उसमें सिम्टम्स वगैरह क्या होता है नेक्स्ट। ओके, तो ये एंथ्रैक्स के टाइप होते हैं। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ एंथ्रैक्स। सो फर्स्ट वन इज अ क्यूटेनियस एंथ्रैक्स, सेकंड वन इज इनहेलेशन एंथ्रैक्स, एंड थर्ड वन इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्रैक्स। ओके, सो आउट ऑफ दिस क्यूटेनियस एंथ्रैक्स, इनहेलेशन एंथ्रैक्स इज आल्सो नोन एज wool sorters disease. Inhalation anthrax is also known as wool sorter disease. So and last one is a gastrointestinal anthrax. Okay, so ये तीनों जो टाइप होते हैं, क्यूटेनियस मतलब क्या है? क्यूटेनियस मतलब आपके स्किन के ऊपर, शरीर के ऊपर अगर इन्फेक्शन होता है तो उस एंथ्रैक्स का, तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस एंथ्रैक्स। अगर आप उसको इनहेल करते हो, इनहेल मतलब अगर आप सांस लेते समय उसका जो स्पोर है बैक्टीरिया का, वो अगर आपके अंदर चला गया लंग्स में या फिर आपके ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें, तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन एंथ्रैक्स। ओके, और अगर ये बैक्टीरिया आपने खाया, इंजेस्ट किया या फिर एक्सीडेंटली आपके अंदर गया अंदर आपके पेट में, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्रैक्स। ओके, सो दीज आर 3 टाइप्स, क्यूटेनियस एंथ्रैक्स, inhalation anthrax and gastrointestinal anthrax. Okay, so out of these, inhalation anthrax is known as a wool sorters disease. wool sorters disease जो भेड़ बकरियां होती है, जिससे अपन क्या करते हैं, वूल निकालते हैं, वूल, ठीक है, जो बकरियां होती है उससे वूल निकालते हैं। तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं उसमें वो दे यूज टू इनहेल द spores of Bacillus anthracis and they get infected. That's why it is known as a wool sorters disease. ठीक है, जो इनहेलेशन एंथ्रैक्स होता है इट इज आल्सो नोन एज अ wool sorters disease. आप देख लेते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या आता है। ऑब्वियसली जो तीनों टाइप है, क्यूटेनियस, इनहेलेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्रैक्स, वो तीनों का भी सिम्टम्स अलग अलग है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल द सिम्टम्स ऑफ ऑल द टाइप्स, आई विल जस्ट डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ क्यूटेनियस एंथ्रैक्स। ठीक है, सो उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर दिस एंथ्रैक्स? सो incubation period for anthrax is 1 to 2 days and it may be up to 1 month. ओके, सो एक दो दिन में भी आपको उसके सिम्टम्स नजर आएंगे या फिर एक महीने तक आपको सिम्टम्स नजर आएंगे। ठीक है, आफ्टर इन्फेक्शन, अगर आज आपको इन्फेक्शन हुआ है तो 1-2 दिन में आपको उसके सिम्टम मिल जाएगा या फिर मे भी महीने में मिल जाएगा। मतलब 1-2 दिन में मिल सकता है या फिर 10-15 दिन, महीना में भी मिल सकता है।
ठीक है। सो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन, इट विल स्टार्ट टू मल्टीप्लाई। ओके, सो द टाइम स्पैन बिटवीन गेटिंग इन्फेक्शन एंड the time from which there will be a symptoms, that is known as a incubation period। ठीक है, so incubation period कितना है इसका, 1 to 2 days up to 1 month। ठीक है, तो symptoms क्या आएंगे इसके एंथ्रैक्स के। सो एंथ्रैक्स के सिम्टम आएंगे particularly cutaneous anthrax। okay, so cutaneous anthrax, what are the different symptoms of cutaneous anthrax? So if you got a cutaneous anthrax, then you will get a itchy area like insect bite, and at that area there will be inflammation, blister formation with black center, then shivering will be there, then chills will be there। So I will explain in the Hindi also, don't worry। so अगर क्यूटेनियस एंथ्रैक्स आ गया आपका, तो आपको वहां पे थोड़ा सा ऐसा जैसे आपको किसी किसी इंसेक्ट ने काटा है, ऐसा आपको वहां पे एक इची एरिया आ जाएगा, जिसमें आपको एक जिसमें इंसेक्ट बाइट जैसा इची एरिया आ जाएगा, और उसमें ब्लिस्टर होगा। ब्लिस्टर मतलब बड़ा फुंसी होगा, बड़ा फुंसी हो जाएगा, और उसमें व्हाइट व्हाइट लिक्विड भी, मतलब उसमें ये फ्लूइड भी आएगा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा आपका, आपका पेन हो जाएगा वहां पे, शिवरिंग एंड चिल्स। शिवरिंग एंड चिल्स मतलब पूरा अपने बदन पे काटा आ जाएगा, उसको बोलते हैं शिवरिंग। चिल्स मतलब आपको ठंडी हो जाएगा। ओके, सो ऑब्वियसली कौन सा भी इन्फेक्शन अगर हो गया आपको, तो फीवर तो आना ही आना है, फीवर आएगा आपको, आपको खुजली होगी। ठीक है, इट्स इची एरिया, खुजली होगी। ठीक है, इनहेलेशन एंथ्रैक्स में क्या होगा, ऑब्वियसली सोर थ्रोट होगा, कफिंग होगी, स्नीजिंग होगी। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा, आपको लैक्रिमल सिक्रेशन होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्रैक्स में क्या हो सकता है कि अगर आपके पेट में गया तो आपको वोमिटिंग हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। ओके, या फिर माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, मतलब आपका जो भी न्यूट्रिशन खा रहे हैं आप उसको प्रॉपर तरीके से वो आपके ब्लड में नहीं जाएगा। सो ये हो जाएगा किसमें, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्रैक्स में। इनहेलेशन में क्या हो जाएगा, आपको सोर थ्रोट हो जाएगा, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा आपको, उसके बाद में निमोनिया टाइप इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, सो ये होता है 3 टाइप, क्यूटेनियस, इनहेलेशन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्रैक्स। ओके, तो सिम्टम्स भी हो गया। अभी क्या देख लेते, ये जो फर्स्ट इमेज है उसका है क्यूटेनियस एंथ्रैक्स का, ऐसा आपको स्कार या फिर ऐसा आपको लेशंस मिलेगा। लेशंस मतलब जख्म जो बोलते हैं उसको, वो मिल जाएगा, या फिर आपको बाइट जो होगा ऐसा होगा। तो इसमें एक बबल फॉर्मेशन होता है, उस बबल फॉर्मेशन में अगर उसने आपने उस बबल को फोड़ दिया, फुंसी को फोड़ दिया, तो उसमें से फ्लूइड आएगा आपको, व्हाइट व्हाइट फ्लूइड। ओके, और ये जो फुंसी है उसके सेंटर में ब्लैक हेड रहता है। सो ब्लिस्टर विथ ब्लैक सेंटर, ये जो ब्लिस्टर होता है इसमें एक ब्लैक सेंटर रहता है। ठीक है, उसमें चिल्स, फीवर भी आएगा आपको। ठीक है, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? सो ऑब्वियसली पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, बट व्हाट हैपेंस, सम स्ट्रेन्स ऑफ एंथ्रैक्स, इसमें कुछ स्ट्रेन्स ऐसे होते हैं। So some strains of anthrax, they are resistant to penicillin. So they are if such strains are available, penicillin will be ineffective. Okay, so first choice is a penicillin. Then alternatively, if it is a resistant, then you have to use ciprofloxacin, then doxycycline. Okay, so you can use penicillins, ciprofloxacin and doxycycline. These are the alternative drugs. All are the drug of choice in case of anthrax, but first drug of choice is a penicillin. If there is a resistance to penicillin, then you have to use ciprofloxacin and or doxycycline. Okay, so it is a fatal infection if it is not untreated. If it is untreated or if it is not treated, it is a fatal infection. Means इसमें क्या होता है, अगर आपने इसका इलाज नहीं किया तो आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, so that is a anthrax। एक इसका भी एक एपिडेमिक आता रहता है। ठीक है, सो एपिडेमिक होता है उसका। नेक्स्ट इन्फेक्शियस डिसीज वी विल सी, दैट इज अ टाइफाइड। सो आपने बहुत बार सुना होगा कि इसको टाइफाइड हो गया, इसको टाइफाइड हो गया। तो एक्चुअली होता क्या है वो टाइफाइड, सो इसमें हम जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर द ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज फॉर टाइफाइड इज अ क्लोराम्फेनिकॉल। क्लोराम्फेनिकॉल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर typhoid. Okay, there are two, typhoid fever is different, typhoid is different. Okay, there is a little bit difference over there.
So I will explain. So first of all, we will see what is typhoid. कि टाइफाइड क्या होता है ये देख लेते हैं. सो टाइफाइड इज इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोरुलेटिंग फैकल्टेटिव अरेबिक बैक्टीरिया. ओके, सो द नेम ऑफ बैक्टीरिया इज साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी. सो इट इज अ टाइफाइड इज कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोरुलेटिंग फैकल्टेटिव अरेबिक बैक्टीरिया दैट इज साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी. ओके, it is known as a typhoid because fever occurred in this typhoid infection is exactly like that of typhus. टाइफाइड कौन करता है? टाइफाइड कहाँ से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है टाइफाइड का? कि टाइफाइड होता है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से जो स्पोर्स नहीं बनाता. इट इज अ नॉन स्पोरुलेटिंग, जो स्पोर नहीं बना सकता. ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, नॉन स्पोरुलेटिंग है, फैकल्टेटिव अरेबिक है. मतलब कभी कभी इसको ऑक्सीजन लगता है, कभी कभी नहीं भी हुआ तो भी चलेगा. ठीक है, जिंदा रहने के लिए. सो इट इज अ फैकल्टेटिव एरोबिक. ओके, सो उसका नाम है साल्मोनेला टाइफाई एंड साल्मोनेला पैराटाइफी. ओके, सो दिस टाइफाइड infection is known as a typhoid. This infection is known as a typhoid because the fever occurred in this infection is exactly like a typhus fever. So typhus fever is another disease. The typhus fever अलग तरह का फीवर होता है. वो फीवर इसमें exactly like उसका उसी तरह का फीवर टाइफाइड में आता है, इसलिए उसको टाइफाइड बोलते हैं. ओके, सो क्यों नाम दिया है उसका टाइफाइड? बिकॉज एक बुखार आता है टाइफस बुखार, उसी के जैसे बुखार इसमें आता है, इसलिए उसको टाइफाइड बोलते हैं. सो this salmonella typhi and salmonella paratyphi, it is a infection to the digestive tract. It is an infection to the digestive tract. Okay, where this salmonella typhi releases or secretes endotoxin. Secretion will be there. They release endotoxin in the gut. Okay, and this is transmitted via fecal-oral route and through contaminated water. I will explain. तो ये जो इन्फेक्शन होता है ये आपके जो आपका GIT होता है उसमें होता है ये इन्फेक्शन. ठीक है, और जो इन्फेक्शन होने के बाद वो बैक्टीरिया क्या करता है? एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है वहां पे. ठीक है, आपके जो पेट या फिर इंटेस्टाइन है वहां पे गट में आपको एंडोटॉक्सिन रिलीज करेगा. आपको तो पता है गट में अगर एंडोटॉक्सिन रिलीज करे तो क्या होगा? आपको वोमिटिंग होगा, आपको डायरिया होगा. ठीक है, आपके पेट में दर्द होगा. सो यू विल हैव डायरिया, वोमिटिंग, देन एब्डोमिनल पेन एक्सेट्रा. ऑब्वियसली इन्फेक्शन है तो फीवर भी होगा. ऑल दीज आर द सिम्टम्स, डायरिया, वोमिटिंग, देन मलेशिया, देन एब्डोमिनल पेन, देन फीवर. ऑल दीज आर द फीवर होगा तो आपको हेडेक भी होगा. ठीक है, सो हेडेक, फीवर, बैक पेन, आई पेन, रैश, मसल एक, जॉइंट पेन, all these are the symptoms. We will discuss it. Okay, so usko what is the diagnostic test for this typhoid fever? Remember, Vidal test is a diagnostic test for this typhoid fever. Okay, and the test is to detect the favorable agglutinin from salmonella species. Okay, so Vidal test you might have, आपने सुना होगा कहीं पे टाइफाइड हो गया, आपको क्या टाइफाइड हो गया? हाँ, तो टाइफाइड हो गया तो विडाल टेस्ट पॉजिटिव हो गया क्या? यस, विडाल टेस्ट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है विडाल टेस्ट बहुत सारे एग्जाम्स में. ठीक है, सो डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है? विडाल टेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट वन आप देखेंगे सिम्टम्स क्या होता है. सो विल सी द सिम्टम्स, incubation period and symptoms. Okay, so what is the incubation period for this typhoid? So it will take around 7 to 21 days after infection to show their symptoms. So आपको 7 से 21 दिनों में आपको उसका symptoms नजर आएगा टाइफाइड का. Okay, so incubation period for this bacteria is 7 to 21 days and symptoms includes fever, headache, vomiting, diarrhea, constipation. Then one of the most important symptom is rose colored spot on the chest. आपकी जो छाती है वहां पे एक रोज कलर, पिंक कलर्ड स्पॉट आ जाएगा.
जिसको अपन टाइफाइड बोलते हैं। जो आपको तो मालूम है, ये जो बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन में क्या करेगा, आपका एंडोटॉक्सिन रिलीज करेगा। आपका एंडोटॉक्सिन रिलीज किया तो क्या हो जाएगा, आपको वोमिटिंग हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा। अगर आपको वोमिटिंग डायरिया हो गया तो मतलब क्या होता है, जहां भी वोमिटिंग डायरिया होता है वहां पे आपका पूरा के पूरा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है। तो आपके शरीर में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, इसका इसका डिफिशियंसी हो जाता है, कमी हो जाता है। अगर आपको डायरिया या वोमिटिंग हुआ है तो आप अगर डायरिया वोमिटिंग हो गया किसी भी चीज में, मतलब नॉर्मल भी हो गया तो आपका पूरा इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएगा बॉडी के बाहर। ठीक है, अगर बॉडी के बाहर इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएंगे, पूरा सिस्टम ही इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड है। अपना अपना पूरा बॉडी इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड है। सो इफ यू वांट टू कॉन्ट्रैक्ट योर मसल, सोडियम इज रिक्वायर्ड। इफ यू वांट टू रिलैक्स योर मसल, क्लोराइड इज रिक्वायर्ड। Magnesium is required for various metabolic processes. Chloride is required. Okay, so अगर आप में इलेक्ट्रोलाइट नहीं बचेगा तो आपको थकान हो जाएगी. Okay, so tiredness will be there. Electrolyte balance, if you get electrolyte loss. Okay, so you have, in that case condition, you have to replenish it. So how you can replenish your electrolytes? Using oral rehydration salts. Okay, जो ORS बोलते हैं अपन उसको, जिसमें सब सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड सब, डेक्सट्रोज वगैरह सब होता है उसमें, मैग्नीशियम। तो वो उसको पानी में डाल के, ग्लास के पानी में डाल के पीते हैं अपन, ताकि यू विल गेट instantly your whatever loss is there, it will be replenished. That is known as oral hydration salt, rehydration salt. Okay, क्योंकि आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, लॉस ऑफ फ्लूइड। ओके, डायरिया की वजह से, वोमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया है, डिहाइड्रेट हो गए आप, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया है, तो उसमें रिहाइड्रेशन करना है आपको। रिहाइड्रेशन मतलब फिर से उसको इलेक्ट्रोलाइट देना है आपको। तो कैसे दे सकते हो? ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का एक पाउच आता है, 5 ग्राम का, 10 ग्राम का। उसको लेना है, कट करना है, ग्लास में एक गिलास पानी लेना है, उसमें डाल के घोल के पी जाना है आपको। ओके, वो भी स्लोली पीना है। अगर आप वोमिटिंग हो गई आपको तो स्लोली पीना है, ताकि बाहर ना जाए। ठीक है, सो इंक्यूबेशन पीरियड इज 7 to 21 days. सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, रोज कलर्ड स्पॉट ऑन चेस्ट, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लिवर। ठीक है, नेक्स्ट इज you can see here, these are the symptoms. Next is chloramphenicol is a drug of choice. Okay, chloramphenicol is a drug of choice. You know, chloramphenicol is a protein synthesis inhibitor. Okay, so it will bind to the 50s ribosome and it will prevent the synthesis of bacterial protein. Okay, so it is a mechanism of action. So chloramphenicol is a drug of choice in the organism which are sensitive. अगर organism resistant है टाइफाइड का, then in that case, if the organism of typhoid is resistant to chloramphenicol, then you have to use ciprofloxacin. Okay, ciprofloxacin. So alternative drug is ciprofloxacin. So chloramphenicol is the first choice of drug. Second choice is the ciprofloxacin. Okay, so it is also drug of choice, remember. Then for this typhoid infection, there is a vaccines also available, that is known as a TAB vaccine, typhoid A and B vaccines. Okay, so for the prophylaxis means what? You might have, आपने बहुत बार सुना होगा कि कोविड के प्रोफिलैक्सिस में क्या यूज होता है, 6 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज होता है। मतलब प्रोफिलैक्सिस मतलब क्या है? प्रोफिलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन, आपको प्रिवेंट करना है, होने ही नहीं देना है, उसके लिए बोलते हैं प्रोफिलैक्सिस। ओके, तो प्रोफिलैक्सिस कैसे करेंगे इसका टाइफाइड का? using typhoid vaccines. Okay, so is that clear? So let's go to the next infectious disease. Okay, so next one is a filariasis. Filariasis, it is also known as elephantitis. Okay, so it is a filariasis. So in that case, drug of choice is diethyl carbamazine citrate. उसको ओके, सो जो फिलारियासिस इन्फेक्शन होता है, जिसको अपन हत्ती रोग बोलते हैं, मराठी में उसको हत्ती रोग बोलते हैं,
तो वो उसमें कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है, डाइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट. इट इज अ एंटी पैरासाइटल ड्रग्स. ओके, तो उसको बोलते हैं डाइथाइल कार्बामेजिन साइट्रेट, डीईसी हम जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डाइथाइल कार्बामेजिन साइट्रेट. सो दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ फिलेरियासिस. हाथी रोग में वो ड्रग ऑफ चॉइस है. ठीक है, तो एग्जैक्टली होता क्या है फिलेरियासिस, वी विल सी दैट. अब वी विल सी व्हाट इज एग्जैक्टली द फिलेरियासिस. Okay, so filariasis is nothing but it is an infection of nematode that is caused by filarial worm. Okay, so it is an infection of nematode caused by filarial worm named Wuchereria bankrupti, then Brugia malae, Brugia timori. Okay, so these are the three organism that causes the filariasis. That is Wuchereria bankrupti, Brugia malayi and Brugia timori. These are the three organisms that causes filariasis. These are the filarial organism, filarial worms. Okay, these causes filariasis. जो हाथी रोग होता है, हाथी रोग उसको कौन करता है, ये तीन ऑर्गेनिज्म करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज ओपन देख लेते हैं कि क्या है एग्जैक्टली. ओके, सो एलिफेंटाइटिस और जिसको हाथी रोग बोलते हैं अपन, that is nothing but the last stage of infection. So initially we will not call it as a elephantitis, but it is a last stage of infection. And this filariasis or elephantitis is transmitted by bite of mosquito. ओके, सो ये कहाँ से ट्रांसमिट होता है, कहाँ से स्प्रेड होता है, कि मॉस्किटो बाइट से स्प्रेड होता है. तो उसमें भी कौन से मॉस्किटो बाइट से, तो देर आर थ्री स्पेसीज ऑफ मॉस्किटो, क्यूलेक्स, एडीज एंड एनाफोलिस. ओके, ये तीन स्पेसीज होता है, क्यूलेक्स, एडीज, एनाफोलिस मॉस्किटो. ये मॉस्किटो क्या करते हैं, इसका जो बैक्टीरिया है फिलेरियल वर्म, उसको ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमंस में. ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज अ मॉस्किटो. ओके, सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस फिलेरियासिस, सिम्टम्स क्या होंगे इसके. Okay, so cutaneous and subcutaneous enlargement of tissue, then accumulation of fluid in the particularly those tissues, particularly in the lower extremities. Okay, enlargement of arms, legs, genital organs, and those enlargement is of elephantoid size. Okay, क्या होता है इसमें, जो भी आपका क्यूटेनियस और सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं उसमें क्या हो जाता है कि लिम्फ फ्लूइड जमा इतनी क्वांटिटी में होता है कि वो आपका पूरा के पूरा पैर जो है, पैर या फिर हाथ, मोस्टली इसमें पैर में ही होता है, लेकिन हाथ में भी हो सकता है, होता है कभी कभी हाथ में. तो इसमें क्या होता है कि वो लिम्फ फ्लूइड जमा होने के बाद वो सूज जाता है, बड़ा 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 हो जाता है, तो आपका पैर हाथी के पैर जैसा हो जाता है. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाथी रोग. ओके, so this is a filariasis and also known as elephantitis. So it will, your legs, your extremities, upper, rarely upper, but mostly the lower extremities will be swollen like that of elephantoid size. That's why it is known as elephantitis. Okay, so ये होता है. इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, डाइथाइल कार्बामेजिन. Okay, so डाइथाइल कार्बामेजिन साइट्रेट is a drug of choice for the filariasis. Now this diethyl carbamazine citrate destroyed both type of filari, that is adult as well as microfilari. Okay, so that's why DEC is a drug of choice. Again another drug is there, ivermectin. Ivermectin is also used in the filariasis, but the ivermectin destroys only microfilari, not adult filarial worm. Okay, so diethyl carbamazine citrate destroys both adult as well as microfilarial worm. Okay, whereas ivermectin destroys only microfilari, not adult. Okay, so it was about the filariasis. Now we will take a next disease. Next disease is कौन सा है, chicken pox. So next disease is chicken pox and drug of choice is acyclovir or acyclovir. So in case of chicken pox, drug of choice is acyclovir. Now we will see what is chicken pox.
So chickenpox. What is chickenpox? In the Marathi, it is known as a कांजण्या. कांजण्या म्हणतात मराठीमध्ये त्याला. I don't know what is it called in Hindi. So the causative agent for chickenpox is a virus. Remember, it is not a bacterial disease or bacterial infection. It is a viral infection. Chickenpox, the causative agent for chickenpox is a varicella zoster. Varicella zoster is a virus. It is a type of herpes virus. It is a alpha herpes virus, which is an extremely contagious infection. Mostly occurs in the childhood, but can occur in the adult also. Okay. So chickenpox क्या होता है कि जो कांजने होते हैं वो एक वायरस की वजह से होते हैं, उसको बोलते हैं वेरिसेला जोस्टर. ठीक है. इट इज अ टाइप ऑफ अल्फा हर्पेस वायरस. अल्फा हर्पेस वायरस का टाइप है उसका, और ये एक्सट्रीमली कॉन्टेजियस होता है. मतलब ये बहुत तेजी से फैलता है. अगर इसका इपिडेमिक आ गया, किसी को हो गया, तो इमीडिएटली उसको स्प्रेड होता है दूसरे लोगों में. उसको बोलते हैं कॉन्टेजियस. जैसे आपका कोरोना हो गया. कोरोना इज अ कॉन्टेजियस डिसीज. सो कोरोना ने सबके मुंह पे ताला लगा दिया था ना. तो वैसे ही है कि एक बार किसी को ये हो गया तो स्प्रेड होता है. एक्सट्रीमली कॉन्टेजियस होने की वजह से इट स्प्रेड रैपिडली. ओके. सो इसका भी इपिडेमिक होता है. इपिडेमिक मीन्स व्हाट? आपको तो मालूम होना चाहिए. आपको मालूम है पेंडेमिक क्या है. पेंडेमिक मतलब इफ एनी इन्फेक्शन इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, then it is known as pandemic. And this epidemic is if any infection is restricted to a particular area or particular state, then it is a epidemic. Okay. So it is a epidemic. Chickenpox. Okay. So chickenpox chickenpox दो इसमें होता है. एक तो मोस्ट कॉमनली ये इन्फेक्शन बच्चे में होता है. चिल्ड्रंस में ये मोस्ट कॉमनली होता है, और जब बच्चे में होता है तो उसको बोलते हैं चिकन पॉक्स, वेरिसेला. ओके. और रेयरली कभी कभी अडल्ट में भी इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं शिंगल्स. उसको बोलते हैं शिंगल्स, और हमारे मराठी में उसको बोलते हैं नागिन. ओके. सो मराठी में हमारे को उसको बोलते हैं नागिन. ओके. सो इन चिल्ड्रन वेरिसेला और चिकन पॉक्स हैपेंस, and in adults shingles will be there. Okay. But there is one thing, if you once got a chicken pox in a life, अगर जिंदगी में आपको एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो वो आपको जिंदगी में कभी दोबारा नहीं होगा. क्यों? बिकॉज योर बॉडी डेवलप्स एंटीबॉडीज. वंस आपको एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो आपके इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज तैयार होंगे, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में एंटीबॉडीज तैयार होंगे, और वो एंटीबॉडीज स्टोर होंगे, और जब भी अगेन इन्फेक्शन आपको होगा तो वो एंटीबॉडीज उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे इन्फेक्शन को. सो दैट्स व्हाई एक बार जिंदगी में हो गया चिकन पॉक्स तो दूसरी बार होता नहीं. आई नो दिस पर्सनली वेरी वेल. बिफोर 5 years दिस इन्फेक्शन वाज कॉट टू मी. मुझे भी ये 5 साल पहले चिकन पॉक्स हुआ था. बहुत दर्दनाक होता है. सभी पूरे शरीर पे उसका रैश आ जाता है और बहुत तकलीफ होती, बहुत जलन होती. ठीक है. सो विल सी द सिम्टम्स ऑफ दिस चिकन पॉक्स इंक्लूड्स फीवर, एब्डोमिनल पेन, कफ, runny nose. These symptoms will appear before the rash, before the final rash. You will get a fever, abdominal pain, cough, runny nose, etc. before rash. Then when once rash will start happening, you blister like rash on the face, trunk, and all over the body. Okay. Blister like rash on the face, trunk. एक आपको फुंसी जैसा रैश मिलेगा जिसमें पूरा व्हाइट फ्लूइड भरा होगा. आप अगर उसको ब्रेक करेंगे तो पूरा व्हाइट फ्लूइड निकलता है उसमें से, जो आपके चेहरे पे होगा, आपके बैक पे होगा, आपके फेस पे होगा, आपके छाती पे होगा, आपके पेट पे होगा, आपके कौन से भी एरिया, मतलब सभी बॉडी के एरिया पे ये रैश आ सकता है. इवन the rash can happen on the genital organs also. Okay. So incubation period for this chickenpox virus is around 10 to 21 days. 10 या 21 दिनों तक ये आपको इंक्यूबेशन पीरियड है उसका. एक बार हो गया तो 10-12 दिन तक आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो हो चुका है. जब आपको सिम्टम्स नजर आएंगे तभी आप बोल सकते हैं कि यार मुझे इन्फेक्शन हो गया. ठीक
ठीक है. So next we will see what is the drug of choice. Acyclovir. Acyclovir is a drug of choice in case of chickenpox. Acyclovir उसको drug of choice है. So how acyclovir will act? What is the mechanism of action? So acyclovir will be converted into acyclovir monophosphate first. So there is a one enzyme present in the virus that is known as thymidine. That is, there is one enzyme present in the virus that is known as a thymidine kinase. So this enzyme will convert acyclovir to the acyclovir monophosphate, and then again see virus is a virus will live in the living cell only. Okay, so there is again in our host or in the host cell there is again thymidine kinase. Okay, so first of all your acyclovir will be converted into acyclovir monophosphate by viral thymidine kinase, and again it will be converted into acyclovir triphosphate by host thymidine kinase present in the cell. Okay, then this acyclovir triphosphate will inhibit the DNA polymerase, and if there is an inhibition of DNA polymerase, DNA will not be synthesized and virus will die. Okay, so this is the mechanism of action of acyclovir. Now we'll see next point. So again the drug of choice for treatment of this is acyclovir. Okay, but symptomatic drugs for the treatment of other symptoms like fever, headache, itching, then your itching, etc., diarrhea, abdominal pain. So various drugs are also used. For example, for treatment of your fever, paracetamol is used. For treatment of your itching, various antihistaminic H1 blockers are used like cetirizine, famotidine, etc. Cetirizine, loratadine, etc. Levocetirizine is there, then diphenhydramine is there. Okay, like that. Again, if you got abdominal hyperacidity, then proton pump inhibitors are used. Then if you got headache, then again paracetamol is used. Okay, to prevent local burning and itching, various lotions are used. To prevent the systemic secondary infection, various antibiotics are used. So along with acyclovir, other drugs are also used, but acyclovir is the drug of choice. Okay, last one is a scabies infection. We will take a last infectious disease, scabies infection. In that case, scabies infection, drug of choice is a 10% benzyl benzoate emulsion. Okay, so 10% benzyl benzoate emulsion is a drug of choice in scabies. I will explain what is scabies. Scabies क्या होता है हम देखेंगे. ओके, स्केबीज इसको हमारे मराठी में खरोच बोलते हैं, जिसमें बहुत खुजली आता है उसको बोलते हैं खरोच. दांत खाज खुजली, तो इसमें खुजली बहुत आता है तो उसको बोलते हैं खरोच. ओके, मराठी में. सो इन केस ऑफ स्केबीज 10% benzyl benzoate so emulsion is a drug of choice. So we will see. This scabies is also known as 7 years itching. It is also known as 7 years itching. This is caused by a mite. This is caused by a mite, Sarcoptes scabies. Sarcoptes scabies. The mite is very tiny and burrow under the skin of the host and causes allergic reaction. ये क्या होता है, मैं हिंदी में बोलता हूँ कि ये it is also known as 7 years itching. मतलब क्या कि ये इन्फेक्शन अगर एक बार हो गया आपको तो बहुत दिन तक जाता ही नहीं. ये बहुत दिन तक जाता ही नहीं इन्फेक्शन. ट्रीटमेंट लेने के बाद, प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया तो ही जाता है स्केबीज इन्फेक्शन. ठीक है, ये स्केबीज इन्फेक्शन होता है तो खुजली आता है आपके पूरा हाथ में, एक छोटा छोटा पिंपल आ जाएगा, उसमें से व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलेगा. ठीक है, ये इन्फेक्शन आपके सभी इसमें आ जाता है. आपके में भी आपके अंडर आर्म में आ जाएगा, या फिर आपके जो फिंगर्स है, फिंगर्स के बीच में आ जाएगा, या फिर आपके पाम के ऊपर आ जाएगा. सो दिस इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन बहुत ही मतलब बहुत ही इरिटेटिंग होता है कि आपको इतना इचिंग होता है, कहीं पे भी खुजली करना पड़ता है आप लोग. तो ये एक एलर्जिक रिएक्शंस होता है इसमें.
ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय माइट सार्कोप्टेस स्केबी, ये एक ऑर्गेनिज्म होता है सार्कोप्टेस स्केबी, उसका ऑर्गेनिज्म होता है जो माइट में होता है। जो माइट है इट इज अ वेरी टाइनी माइट, बहुत ही छोटा कीटाणु होता है जो आपके स्किन में एक बार स्किन के अंदर जो लेयर्स होते हैं वो लेयर्स में जाता है, ठीक है, जो जिसको भी इन्फेक्शन हुआ उसके, एंड कॉजेस एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, खुजली आता है, ईचिंग होता है। सो इट इज नोन एज अ 7 years itching. Now we'll see what is the incubation period of this scabies. So incubation period for the scabies is around 2 to 6 weeks after contact with scabies infected person. अगर किसी को स्केबीज है, उसके कांटेक्ट में आप आ गए, फॉर एग्जांपल आपके दोस्त को स्केबीज है, आपने उसके साथ हाथ मिलाया, तो आपको भी हो जाएगा, आपके हाथ में भी। तो इनक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 6 weeks, 2 या 6 हफ्ते में वो सिम्टम दिखा, अगर आप उसके अफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए तो। नाउ विल सी ड्रग ऑफ चॉइस, ऑब्वियसली इट इज अ बेंजाइल बेंजोएट इमल्शन। अलॉन्ग विद दैट अदर ड्रग्स यूज्ड आर, कौन से अदर ड्रग कौन से होते हैं, परमेथ्रिन, इवरमेक्टिन इज आल्सो यूजफुल, they are used for the treatment of secondary infection. Okay, they are also used in the treatment of scabies. Permethrin, ivermectin, they are also useful. Okay, for the secondary infection, अगर इसके साथ इसकी वजह से कोई दूसरा इन्फेक्शन हो गया तो उस टाइम पे आपको पेनिसिलिन यूज करना है। ओके, सो पेनिसिलिन आर यूज्ड फॉर द सेकेंडरी इन्फेक्शन। ओके, सो ये स्केबीज का लास्टली आई वुड लाइक टू से कि ये इन्फेक्शन क्यों होते हैं। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन इज बिकॉज ऑफ योर लो इम्यूनिटी। ओके, सो ट्राई टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, ट्राई टू ईट हेल्दी, ट्राई टू मेंटेन ए healthy practices, so you will not get infections. Okay, so at the end I would just like to say, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद उसको, जो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी वीडियोस मिलते रहे, और जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे नए नए वीडियोस के। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट। अगर आप कौन से भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये फंडामेंटल्स ऑफ जीपैट एंड दिस एमसीक्यूज, जीपैट क्रैक कर रहे हैं नाचू और एमसीक्यूज जीपैट के लिए यूजफुल है, नाइपर के लिए यूजफुल है, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट or any kind of government exam. So these book consist of essence of different reference. Anybody is interested, they can contact me on this number. Screen पे मेरा नंबर दिया